सिंस वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की ये थ्योरीज ही हैं। ये दो थ्योरीज propound हुई थी, एडवांस की थी। क्लासिकल मॉडल है और कीन्सियन मॉडल है। कीन्सियन मीन्स उसका नाम है लॉर्ड J.M. कीन्स। Classical model is based on the free market economy, where he believes it is based on Say's law of market. Say's law of market is a market law which was given by J.B. Say's, Jean-Baptiste Say's. And according to this law, Say's law of market says that every supply creates its own demand. Whereas Keynes criticized this model and he believed that there cannot be automatic equality between demand and supply. Government has to intervene. Whereas the classical people believe that there is always an automatic equality between AD, aggregate demand, and aggregate supply. So first we'll start with aggregated demand. I'll come to this part again. Aggregated demand means total demand. Kul mang, total demand being generated by various sectors of economy during 1 year, the period of 1 year is known as total demand or aggregated demand. Remember total expenditure method we did in national income? It is more like उसके जैसा ही है, क्योंकि total expenditure will always be equal to total demand. So there are two concepts in aggregated demand. One is two model economy. उसमें कहेंगे हम aggregate demand is equal to C plus I, because demand for final goods, final demand is either made for consumption purpose or for investment purposes. और यही हमारा expenditure method में भी चल रहा था. Private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net exports. तो वही concept यहाँ पे भी है. तो एक तरीका तो ये है कि aggregate demand, अगर आप if you want to write in a simple words, you can write it aggregate demand or total demand refers to the total demand for final goods and services being generated in an economy during the period of 1 year. That is aggregated demand. If you want to further write down, you can write कि aggregated demand is either made for consumption purpose or for investment purposes. That is AD is equal to C plus I. और दूसरा तरीका हो सकता है कि components of AD is equal to H plus G plus I plus X. Look, जबकि हम पढ़ चुके हैं ये, this is a household consumption demand, जो हम पहले लिख रहे थे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दिस इज गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड में लिख रहे थे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन डिमांड. इन्वेस्टमेंट डिमांड, जिसको हम लिख रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. तो टू सेक्टर के केस में आप लिख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड इज ईदर मेड फॉर कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. और अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि कंपोनेंट्स लिखो इसके, तब आप लिख दो हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड नेट एक्सपोर्ट्स. नाउ टू फर्दर गो इन डीप जाने के लिए, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स व्हिच अफेक्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड. वन इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, that income is either consumed or saved. This is basic information. Y is equal to C plus S. तो ऐसा ही तो होता है, जो आपके घर में भी इनकम आ रही है, either you consume it and the rest you save. तो this becomes the basic principle, क्योंकि इसके आगे सारे डायग्राम, हमारे इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स इस बेसिक कॉन्सेप्ट में बेस्ड होंगे सारे. तो ये आपको बैक ऑफ द माइंड याद रखना है कि y is equal to C plus S, which means income is either consumed or saved. So there are two concepts which affect households consumption demand. One is propensity to consume, and what is propensity to consume? The capacity to consume, which is further divided into two concepts. One is average propensity to consume
एंड अनदर इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं दिखाता हूं आपको। दूसरा है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी मेरे पास, चलो कोई नहीं, लिखो टू सेव। लाइकवाइज इसमें भी दो कंसेप्ट हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। लुक, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग बताया आपको मैंने। फिर टू सेक्टर मॉडल में हम ये ऐसा लिख सकते हैं, या कंपोनेंट्स में हम ये लिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मार्क्स का आने से यू कैन गो फर्दर डीप, आप और इसको डिटेल में जा सकते हो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड is influenced by two concepts, that is propensity to consume and propensity to save. Propensity to consume has further two concepts, average propensity to consume and marginal propensity to consume. और propensity to save भी दो तरह का होता है, average propensity to save and marginal propensity to save. An average propensity to consume is equal to consumption divided by income, whereas marginal propensity to consume is change in consumption divided by change in income. लिख लो। एवरेज निकालने के लिए तो सीधा ही आएगा ना। अगर हम एपीसी निकाल रहे हैं तो सी डिवाइडेड बाय वाई, और अगर एपीएस निकाल रहे हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल रहे हैं, तो सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। लेकिन जब हम मार्जिनल निकालेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब इनका रिलेशनशिप क्या है, ये बताया था बेसिक इक्वेशन, सी इज इक्वल टू। अब देखो कॉमन सेंस है, इफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाई, किसी कंट्री में द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाई, that means households consumption demand will be more, which also means that aggregate demand will be more. लेकिन किसी कंट्री में अगर प्रोपेंसिटी टू सेव हाई है, तो मेन लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, दैट इंप्लाइज कि दे आर कंज्यूमिंग लेस। तो जब वो कंज्यूम लेस कर रहे हैं तो हाउस होल्ड की कंजम्पशन डिमांड भी कम होगी और एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। तो इसका निष्कर्ष, निचोड़ ये निकला कि propensity to consume has a direct relationship with AD, which means higher propensity to consume means higher AD, aggregate demand, whereas propensity to save has an inverse relationship with aggregate demand, because if people are saving more, then households consumption demand will be less, and finally aggregate demand will be less. So this is a topic which is an add-on topic. इफ यू अगर आपको लिखना है एग्जाम में और ज्यादा मार्क्स का आया है, या वो स्पेसिफिक भी पूछ सकता है, तो यू कैन फर्दर ऐड ऑन कि आप उसको अपने आंसर्स को और अट्रैक्टिव और अच्छा बना सको, और ये आगे भी आएगा हमारे को। अच्छा, फिर गवर्नमेंट, जो सेकंड कंपोनेंट है, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट सिंपली मींस कि गवर्नमेंट टू रन इट्स वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स परचेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ durable, non-durable goods within country or from abroad, so that implies government demand for goods and services. सेकेंड हैंड भी लेती है गवर्नमेंट, सेकेंड हैंड सबमरीन्स लेते हैं हम, शिप्स लेते हैं, बड़ा कुछ लेते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो है इन्वेस्टमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इधर जगह नहीं है पर मैं आपको दिखाता हूं। एक है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और दूसरी है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसका तो नाम ही है कि वो इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और जनरली ये गवर्नमेंट करती है इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की इन्वेस्टमेंट जहां पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट आएगा एक एक्सिस पे और इन्वेस्टमेंट इस एक्सिस पे।
तो वो इन्वेस्टमेंट विच रिमेन्स अनचेंज्ड या विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री. वी हेयर रिमेंबर हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द होल कंट्री. सो तो ये हम पूरा एग्रीगेट लेवल पे पढ़ रहे हैं इसलिए. तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. And generally these are the investments made by government because investments वो expenditure जो government करती है they are not influenced by the level of income and employment. But to know आपको मतलब पता होना चाहिए. तो इसलिए autonomous investment is a feature of a competitive economy. It is assumed that in competitive economy the minimum required investment which are made by government are known as autonomous and they are not influenced by the level of income and employment. Whereas जो दूसरा वाला है उसका तो नाम ही बता रहा है कि दैट इट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड मींस इन्फ्लुएंस्ड इन्वेस्टमेंट. तो वो तो ऑलरेडी नाम से बता रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड है. तो उसका तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उसका तो बिहेवियर ऐसा आएगा इंड्यूस्ड का. हायर द लेवल ऑफ इनकम और इन्वेस्टमेंट, more will be the employment and more will be the income. Lesser is the investment, lesser will be the employment and lesser will be the income. So ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, induced autonomous and induced. Autonomous investment are those which are not influenced by the level of income and employment, whereas induced investments are those which are influenced by the level of income and employment. So ये आपका थोड़ा सा कंटेंट बताया मैंने आपको जो आप एग्रीगेट डिमांड में ऐड कर सकते हो. और लास्ट वाला जो कंपोनेंट है एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स, ये तो आपको पता ही है. एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, डिफरेंशियल बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड में जो आप लिख सकते हो और जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. नाउ कम टू द एग्रीगेट डिमांड कर्व. हमने अभी पढ़ा था कि AD इज इक्वल टू C प्लस I. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I. और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो अगर इनकम लेवल 0 भी हो, कंजम्पशन कैन नॉट बी 0. समझ रहे हो ना? कंजम्पशन 0 हो सकती है कभी किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी कंजम्पशन लेवल 0 नहीं हो सकता ना. वो तो लोग मर जाएंगे. कंजम्पशन लेवल 0 होता है फेमाइंस के केस में, ड्रॉट्स, सूखा पड़ता, अकाल पड़ता है जब, तो वहां पे तो ग्रेन्स होते ही नहीं है, तब इनटेक नहीं होता. बट इन जनरल सेंसेस आपका इनटेक 0 नहीं हो सकता ना. इंसान को सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए इनटेक तो करना ही है, कंज्यूम तो करना ही है. तो इनकम लेवल 0 होने पर भी कंजम्पशन इज नेवर 0. तो इसलिए कंजम्पशन मान लेते हैं कि इतना मिनिमम कंज्यूम करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए. तो कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरह का बनेगा. ये जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, जिसको मैंने C बार लिखा हुआ है, दिस इज ऑटोनमस कंजम्पशन. मींस वो कंजम्पशन जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है और 0 इनकम पर भी उतना कंज्यूम कर रहा हो, कंजम्पशन हो रही होती है. So this is known as autonomous consumption. Further, with the increase in income, consumption rises. But again, it depends upon the rate of marginal propensity to consume. Look, मान लो ये कर्व है, मैं पेन रखा हुआ देखो, ये कर्व है और ये MPC है मान लो 0.6, ठीक है, और ये इंडिया की है. अब यही एग्जांपल हम जर्मनी का लेंगे तो ऑटोनमस कंजम्पशन भी हाई होगी क्योंकि वहां पे कंजम्पशन पैटर्न अलग है, वो जिंदा रहने के लिए ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और वहां पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है तो इनका कर्व भी स्टीपर होगा. इट विल गो लाइक दिस. हायर द वैल्यू ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अरे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी बताया ना, कैपेसिटी टू कंज्यूम, रेट ऑफ कैपेसिटी. तो हायर द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, स्टीपर विल बी द कंजम्पशन कर्व. तो दिस इज हाउ कंजम्पशन कर्व इज ड्रॉन. और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनमस. ऑटोनमस मींस इंडिपेंडेंट.
और हमें पता है ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो आई ये है, रिमेंबर लास्ट ईयर हमने टॉपिक किया था माइक्रो में, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलता था हमें टोटल कॉस्ट, तो वही फंडा है यहाँ पे भी। कंजम्पशन कर्व ये है और इन्वेस्टमेंट इसमें कांस्टेंट है, तो इसको पैरेलल ड्रॉ कर लो इसका। ये बन जाएगा आपका एग्रीगेटेड डिमांड कर्व। मैंने इसको ब्रेकअप करके आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनमस, तो वो तो फिक्स्ड हो गया कर्व, ऑटोनमस कर्व, लेकिन कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड स्टार्टिंग अबव द ओरिजिन। और अबव द ओरिजिन इसलिए क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, जो जीरो इनकम भी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन। विद फर्दर इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन दिस इक्वेशन। देखो C is equal to autonomous consumption plus marginal propensity to consume into income. अब autonomous consumption ये रही हमारी। MPC तो अलग अलग रहता है, किसी कंट्री में 0.2 भी हो सकता है, मंगोलिया जैसी कंट्री में, या कोई बहुत अफ्रीकन कंट्री होगा 0.3 भी हो सकता है, मतलब बहुत कम कंज्यूम करते हो, और कई कंट्री में 0.8 0.9 तक भी हो सकता है। तो हायर द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टीपर विल बी योर कंजम्पशन पैटर्न, आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। अब ये देखो एक चीज, इसको ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को डिराइव कैसे करना है, हाउ टू ऑब्टेन ए डी कर्व, एंड ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर्व आ गया हमारा ये, कंजम्पशन आ गया ये, यही हाइट इसमें ऐड की तो एक पैरेलल ड्रॉ हो गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। और कंजम्पशन, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जो होता है, कंजम्पशन का जो इक्वेशन है वो ये है कि कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनमस कंजम्पशन, मींस मिनिमम कंजम्पशन वो कर रहा है, प्लस उसका उस कंट्री में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, और इनकम के लेवल इनटू इनकम, कि उन कंट्रीज में इनकम लेवल क्या चल रहा है, तो इससे हमें उसका कंजम्पशन मिल जाता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऑटोनमस कंजम्पशन हमारी 50 और इनकम है 100 200 300 400 500, और एमपीसी ले लेते हैं कुछ भी 0.5 इंटू 400, मतलब मिनिमम जो कंज्यूम कर रहा है वो 50 है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उस कंट्री में 0.5 है, और इनकम लेवल मान लो ये 500 ना, ये 400 है, ये वाला इनकम लेवल है। तो करो इसको, निकालना वैल्यू फटाफट, कोई सीधे निकल गया 200, 250 हो गया, हाँ 250 हो गया, क्योंकि 0.5 इंटू 200 हो गया प्लस 50, तो आ गया ना कि कंजम्पशन लेवल आ गया 250। तो मतलब क्या हुआ कि इनकम लेवल है ये 100 200 300 400 लेवल पे जो कंजम्पशन है दैट इज 250। मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इसका मतलब क्या है। हालांकि फिगर्स दी होंगी आपको, क्वेश्चन अगर दिया होगा तो फिगर दी होगी आपको, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज हाउ कंजम्पशन इज इन्फ्लुएंस्ड। अब यही 0.5 की जगह होता 0.8, अगर होता तो ये 370 370 हो जाना था, फिर कंजम्पशन हायर हो जानी थी। और ये होता अगर मान लो 0.2 तो हो जाना था 850 है ना। तो अलग अलग रेट है। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, शायद उससे ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। कोई टेबल लेके बताता हूँ आपको मैं एक ना, मान लो यहीं पे करके दिखाता हूँ।
वाई सी एस, और इनकम दी है मान लो हमें 100, 300, और कंजम्पशन दी है कुछ भी ले लेते अपनी मर्जी से। कंजम्पशन ली है 120, 180, 200, मान लो इस तरह का डाटा दिया है हमें, और बोला है कि सब कुछ निकालो, एमपीसी एपीसी सब निकालो। तो पहले हमें वो बेसिक याद रखना है कि इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। अगर 100 रुपया इनकम है और वो 120 खर्च रहा है तो मतलब सेविंग आएगा -20, ये 20, ये 100, ऐसे आएगा ना, क्योंकि सी प्लस एस को जोड़ के वाई आना चाहिए। समझ आया? अब मान लो मैं निकालना है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो होता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 1.2, फिर 180 0.9, 2 3 6 18 66, ऐसे निकलेगा ना। एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। कंजम्पशन है 120, वो है 100, आ गया 1.2, 180 डिवाइडेड बाय 200 0.9, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। ऐसे ही मार्जिनल निकालना होता, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ये फॉर्मूला होता है एमपीसी का, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अब देखो कंजम्पशन में कितने का चेंज आ रहा है, 120 से 180 हो रहा है, तो 60 का चेंज आ रहा है ना, 60 डिवाइडेड बाय 100 आ गया 0.6, पहले तो डैश हो जाएगा ना, तो 0.6। फिर अगले में देखो 180 से 200 हो रहा है, तो कितना आ रहा है 20 का चेंज, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.2। अब ये निकाल लिया ना हमने। अब एक इसका ये याद रखना हमेशा के लिए, दैट एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, लाइकवाइज एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, दिस थिंग। एंड ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, व्हाट इट इज शोइंग, सेम चीज, दैट इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। इसी को बेसिस बना के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर यहां पे हमने एमपीसी निकाली है अभी, और यार ये 0.6 और 0.2, तो एमपीएस बन जाएगा डैश 0.4 और 0.8। ये देखो एक को निकाला, वो निकला 0.6, तो फिर दूसरा वाला 0.4, क्योंकि दोनों को जोड़ के 1 ही बनना चाहिए ना। इसको निकालने से आया था 0.2, तो एमपीएस, अगर एमपीसी 0.2 है तो एमपीएस 0.8, क्योंकि दोनों को जोड़ के एक यूनिट बननी चाहिए ना, 1 बनना चाहिए। तो एक को निकालने से दूसरा वैसे निकल जाता है। अब आ जाओ वापस एग्रीगेट डिमांड। ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये निकालने के लिए एक निकाल लो। जब एक निकाल लिया, दूसरे को 1 में से माइनस कर लेना। हाँ बोलो। तो ये जो पहला एपीसी है उसका 1.2 है, तो एपीएस माइनस। बिल्कुल, अभी वही बताने लगा हूं मैं, अभी वही बताने लगा हूं, क्योंकि कंजम्पशन कर्व अगर 0 से अबव जितना है, 0 इनकम पे कंजम्पशन अगर पॉजिटिव हो रही है,
तो जीरो इनकम पे सेविंग उतनी नेगेटिव होगी ना। मैं वही बताने जा रहा था। पहले मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई बता देता हूं। चलो, इसने वृंदा ने पूछा, मैं ये बता देता हूं, रुको। वृंदा ने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब समझ लेना सारे। उसने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है। देखो, मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो कि ये हमारा कंजम्पशन कर्व है और ऑटोनमस कंजम्पशन इतनी है, तो इतनी हमारी नेगेटिव आ जाएगी सेविंग्स। ऐसा बन जाएगा ना बेटा, ऐसा कि जीरो इनकम पे जितनी कंजम्पशन पॉजिटिव है, अभी हमने इसका प्रिंसिपल बताया था ना कि कंजम्पशन तो जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज इफ कंजम्पशन बिकम जीरो तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो जितना कंजम्पशन पॉजिटिव होगी तो जीरो इनकम पर सेविंग उतनी ही नेगेटिव होगी, क्योंकि अभी जो हमने टेबल किया उसमें कंजम्पशन आ रही थी 1.2, मतलब 1 से एक्सीड कर रही थी। तो सेविंग जब निकालोगे तो आएगा -0.2, क्योंकि वो दोनों को जोड़ के 1 बनना था ना। तो वो ठीक पूछ रही है। आज वृंदा इसका एक और चीज भी सीख ले करके, अब तूने इसके डायग्राम को छेड़ा ना, तो अब इसका इक्वेशन भी समझ ले। ये इक्वेशन तो मैंने अभी समझाने की कोशिश की तुम्हारे को, फिर से बताता हूं कि अगर ऐसा बनता है कि C इज इक्वल टू MPC इंटू वाई, तो सेविंग बन जाएगी -S बार प्लस MPS इंटू वाई, ऐसे बन जाएगी। कंजम्पशन की इक्वेशन तो ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम, लेकिन सेविंग बन जाएगी कि सेविंग इज इक्वल टू माइनस ऑटोनमस सेविंग। माइनस इसलिए क्योंकि जीरो पर जो सेविंग होती है वो नेगेटिव ही रहेगी, प्लस MPS इंटू वाई। अब इसको हम एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं कि मान लो, अभी पिछला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं कि ऑटोनमस कंजम्पशन थी 50 और MPS हमने कितना लिया था 0.5। अच्छा, वो तो सेम ही हो जाएगा। चलो इसको हम ले लेते हैं 0.2 और इनकम ली थी हमने 400। मान लो ऐसी बन रही थी इक्वेशन, ऑटोनमस कंजम्पशन 50 थी और MPC 0.2 था और इनकम 400 थी। तो इसी से वी कैन डिराइव द सेविंग कर्व, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है ये बन जाएगा -50, वो 0.2 था तो ये बनेगा 0.8 इंटू 400, ऐसे बन जाएगा ये। और इसको अगर आप निकाल ही लो तो ये बन गया 50 प्लस 8। देखो ऐसे बन गया ना, कंजम्पशन 130 निकलाई, सेविंग ज्यादा निकलाई 270, और दोनों को जोड़ के इनकम देखो 400 ही आ रही है। बिकॉज प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना, इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो कंजम्पशन और सेविंग की वैल्यू एक निकल रही है 130, और वो क्यों कम निकल रही है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने एग्जांपल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बड़ा लो लिया है, 0.2 लिया है, कि ऐसे कंट्री का एग्जांपल लिया जहां पे लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो लिया है तो वो कम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं तो सेविंग ज़्यादा आ रही है। तो सेविंग और कंजम्पशन को जोड़ के विल गेट द इनकम। वो तो गिवन ही है हमारे को, देखो 400 लेके हम एग्जाम्पल चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ कंजम्पशन कर्व
is derived from saving curve or saving curve is derived from consumption curve. As far as equations are concerned, तो वो concept ही based है. वो तो diagram में लिख लो, चाहे आप लिख के लिख लो, चाहे आप numerically दिखा लो. It's the same thing. It doesn't make any difference. चलो ये हो गया, ये आ गया हमारा इसकी डिटेल्स. अभी हमारा आगे फिर से यूज होगा, हम इसके करेंगे भी क्वेश्चंस, लेकिन हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे ऑब्टेन किया वो बताया था. ये बताया था ना आपको मैंने कि हाउ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ इज एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कंट्री इन 1 ईयर. और जो भी हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था ना, द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, द गुड्स वर्थ जितना प्रोड्यूस होगा उतनी इनकम जनरेट होगी, उतना ही एक्सपेंडिचर होगा. और क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं और उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, एंड इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इज रिटन एज C+S. इन नॉर्मल लैंग्वेजेस अगर आपको लिखना है तो आप तो लिख सकते हो. रुको मैं आपको यहां बुक से पढ़ के दिखाता हूं कहीं से. Aggregate supply is the total flow of goods and services in an economy during the period of 1 year. बाकी तो उसने वही बताया हुआ है कि the monetary value of goods and services is distributed among the factors in the form of rent, wage, interest, profit. Thus, physical flow of goods and services become equal to the income generated, and income is C+S. अभी हम पढ़ रहे हैं कि income is either consumed or saved, इसलिए it is written as C+S. जहां तक इस कर्व का बात है तो it is very simple and very logical. That is 45-degree line. That is aggregate supply. This was aggregate demand because ये मिल रहा था C+I और consumption और investment को जोड़ के. Whereas aggregate supply is the flow of goods and services, total flow of goods and services in 1 year, which means कि income and employment कि country में कम इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो टोटल सप्लाई भी सामान भी कम बन रहा होगा, तो टोटल सप्लाई भी कम होगी, विच मीन्स एग्रीगेट सप्लाई. लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल ज्यादा है तो मीन्स ज्यादा सामान बन रहा है, टोटल सप्लाई ज्यादा होगी. और अगर और ज्यादा है तो और ज्यादा बनेगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल. तो एग्रीगेट सप्लाई सिंपली मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर. So aggregate supply में there is not too much of content. It simply means total volume of या total flow of goods and services being produced in a country over the period of 1 year. फिर हमारा था कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा इसमें. तो क्लासिकल्स और कीन्स दोनों ही इस बात पे एग्री करते थे. बोथ एग्रीड, हालांकि वो डिफर करते थे अप्रोच पे, बिकॉज क्लासिकल मॉडल वाज बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड विच सेज दैट एवरी सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, विच मीन्स कि एग्रीगेटेड सप्लाई जितनी होगी एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी. लेकिन कीन्स ने इसको रिजेक्ट किया. कीन्स ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक इक्वालिटी नहीं हो सकती, बिकॉज होल इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड, सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड ऑल्सो. तो ऐसा नहीं हो सकता. वो वहां भी डिफर करते थे, लेकिन बोथ एग्रीड कि इक्विलिब्रियम वहीं पे एस्टैब्लिश होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे. तो अभी जो हमने अलग अलग करके पढ़ा है एग्रीगेट सप्लाई, दोनों को अगर हम डायग्राम्स को इकट्ठा बना दें
तो ये सिजर शेप बनेगा। एग्रीगेट डिमांड जो कि हमें मिला था, ये देखो C+I करके, और एग्रीगेट सप्लाई जो कि अभी बताई मैंने आपको कि 45 डिग्री लाइन होती है ये। तो जहां पर ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं इस पॉइंट पे, where aggregate demand is equal to aggregate supply, this will be your equilibrium level of this OQ will be your equilibrium level of income and employment, which is determined with the help of AD and AS, और इसी पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो ये दो टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे। एक, अगर वो बोलता है कि हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ AD एंड AS, तब आप बताओगे AD को अलग से एक्सप्लेन करोगे, AS को अलग से एक्सप्लेन करोगे, दोनों कर्व को सुपर इम्पोज करोगे, एक दूसरे के साथ दिखा दोगे, मतलब कंबाइंड डायग्राम, एंड दिस विल बिकम योर OQ विल बिकम योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इफ यू आस्क फुल एम्प्लॉयमेंट, तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी वो सिचुएशन है जहां पे कंट्री की टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। इन बोथ द केसेस दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें देयर इज अ लॉट मोर इन दिस चैप्टर, और आई डोंट वांट टू रश इट, बिकॉज इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बजट बचा है सिर्फ, तो इसको हम फिर से कर लेंगे इसको हम एक बार नेक्स्ट क्लास में। बट ये मैं आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि हमारा तो 2 क्लासेस ऐसी मिस होगी, तो आज मैंने आपको ये आई जस्ट गेव यू फूड फॉर थॉट। थोड़ा इसको पढ़ो, थोड़ा सोचो, और थोड़ा क्लैरिटी दी है ताकि आपको थोड़ा पढ़ने पर भी समझ में आए कि क्या है सर ये। कोई पूछना चाहता है कुछ? अभी काफ़ी कुछ है इसमें। इनकम मल्टीप्लायर है, फिर एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड है, उसके मेजर्स हैं, फिर बाद में हम इसके 1-2 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल वाले, इक्वेशन वाले भी कराएंगे। तो अभी तो देयर इज अ लॉट टू इट, मैंने कि एक पीरियड में तो नहीं हो पाएगा। मंडे को होपफुली हम इसको ख़त्म कर पाएंगे, शायद मंडे या ट्यूसडे तक। पर जितना आज किया है इसको एक बार घर में पढ़िएगा बेटा, तभी थोड़ी क्लैरिटी आएगी थोड़ी आपको। मैंने तो अपनी तरफ से बड़ा सिंप्लीफाई करके, ब्रेकअप कर करके पढ़ाया है ताकि आपको हर चीज़ अलग अलग समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड क्लास में वो कंबाइंड क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा कि हाउ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटर्मिन्ड, थोड़ी ना वो हर बार यही पूछेगा। वो तो यही पूछ सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AD, हाउ AD कर्व इज डिराइव्ड, हाउ कंजम्पशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेविंग, हाउ कंजम्पशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेविंग, या सेविंग कैसे डिराइव कर सकते हैं कंजम्पशन से। तो वो तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कॉन्सेप्ट वाइज है ये तो। और ये ऐसे ही क्यों बताया मैंने, ये ऐसे भी है, डायग्रामेटिकली भी है, इक्वेशन वाइज भी है, और अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो यहाँ भी देख लो, यहाँ पे भी तो वो यही बैठ रहा था जो वृंदा ने पूछा था अभी। तो सारी चीजें तो वैसी बैठ रही है ना। तो ये वैसा है। चलो आप इसको करके आना, करके इन सेंस आप पढ़ना, एक रीडिंग मारना, और आई एम वेरी होपफुल कि शायद आपको रीडिंग में ही थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है, व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट।